आ रही है आवाज सर। अच्छा, म्यूट रखे हो क्या सबको? हाँ हाँ किया। बोल दो ना अपने से, वो अनम्यूट कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन डाल दो ना। चलो स्टूडेंट, कैन यू टेल मी बेटा विच टॉपिक वी कंप्लीटेड? हेलो। Hello. Now, student, can you tell me which topic we completed in last lecture? Hello. Important features of solid catalyst. ऋतिक बोल रहा है एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ, बेटा एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, दैट इज द डिलीटेड पोर्शन। आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। फीचर्स of solid catalyst, page number 165. So now student, in catalytic, so there are three type of properties here. One is catalytic activity. Now student, catalytic activity means what? The solid, the activity of catalyst is depend on strength of adsorption. Adsorption अगर ज्यादा होगा तो that will be catalyst is considered as a what? Stronger catalyst. So greater adsorption is considered as active catalyst. If adsorption जो होगा बेटा lower होगा, weaker होगा, कम होगा, then it is considered as a less catalyst.
actives. Now example student like D block elements like, see example दिया आपको बुक में, D block elements like, कौन कौन सा एलिमेंट है देखो बेटा, Fe, वेलेडियम, chromium is stronger active catalyst towards oxygen gas, ethene gas, ethane gas, carbon monoxide, H2, CO2, and N2 gas. So these are student considered as a what? Active catalyst. While manganese अगर देखा जाए, manganese and copper are unable to adsorb नाइट्रोजन गैस. आपने यहाँ पे कैटलिस्ट लिया, यहाँ पे एडजॉर्प्शन इजीली नहीं हो रहा है बेटा. तो जहां पे एडजॉर्प्शन इजीली होगा दैट इज कंसिडर्ड एज स्टूडेंट एक्टिव कैटलिस्ट, और जहां पे एडजॉर्प्शन क्या होगा, इजीली नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज द वर्ड लेस एक्टिव कैटलिस्ट. Hope you all understood catalytic activity. Hello. Now, next student, catalytic selectivity. Catalytic selectivity. The solid catalyst catalysts are selective in nature. Student, how it is the word selective? Here see the word same reactant. Same reactants produce different products. Produce different product when different catalysts are used. When different catalysts are used. Example देखो बेटा, ethene plus oxygen. Ethene C2H4 plus oxygen gas. And second बेटा, again ethene C2H4 gas plus oxygen gas. तो फर्स्ट में देखो बेटा प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, CH3CHO
और सेकंड में प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? C2H4O। फर्स्ट वाले का नाम क्या है बेटा? प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल। सेकंड का क्या है? इथिलीन ऑक्साइड। तो सीधा इथीन, इथेनॉल दे रहा है, इथीन ही क्या दे रहा है? इथिलीन डाइऑक्साइड। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे हम कैटलिस्ट जो यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। अगर आपने यूज किया यहाँ पे पैलेडियम विथ एल्यूमिना, तो दे आर गिविंग इथेनॉल। बट अगर आपने लिया बेटा सिल्वर विथ एल्यूमिना, तो दे विल बी गिव द व्हाट? इथिलीन ऑक्साइड। So student, catalytic selectivity, the solid catalysts are selective in nature. Same reactant produce different product when different catalysts are used. Like ethene will give the student ethanol, while ethylene same ethene, इसको भी ethene ही लिख सकते हैं, common name ethylene है. तो ethene react with oxygen, same reactant है, but produce the ethylene oxide because we are using the different catalyst. At the palladium, place of palladium, we are using the silver metal. So hope you all understood catalytic selectivity. Hello. Okay, can I repeat now? Done. लिख के हो गया कि स्क्रीनशॉट लिख के हो रहा है? यस नेहा, लिख के हो रहा है बेटा? यस, और अब लिख लो। तो लिखो फटाफट, साथ में लिखते जाओ। डन बेटा? Now next student, say shape selective catalysis by zeolite. Catalyst by zeolite. So right student, zeolite are aluminosilicates. Zeolite are aluminosilicate with three-dimensional network. With three-dimensional network of silicates.
आगे लिखो, द रिएक्शन इन जियोलाइट आर डिपेंडेंट ऑन, the reaction in zeolites are dependent on the size and shape of reactants or products. And also on pores and activity of zeolite. Pores and activity of zeolite. Therefore, zeolites are shape selective catalyst. Shape selective catalyst. Done. Example. Zeolite catalyst. Zeolite catalyst. ZSM. Yes. Used to convert alcohols to gasoline. Gasoline means what, beta? Petrol. ये तो हमने बेटा कंप्लीट कर लिया. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द वर्ड कैटलिस्ट. डन. लिख के हो गया ये. चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेटा कोलाइड्स. कोलाइड्स. अभी देखिए होता है क्या बेटा, ऑन बेसिस ऑफ size of particles in solution. क्या इसको हम बोल सकते हैं बेटा मिक्सचर. They are classified in following three types. इसको आप अच्छे से समझ लो. तो थ्री टाइप्स देखो कौन कौन सा बेटा. कोलाइड्स कैंसल है. किसने बोला? कोलाइड्स आर कैंसल्ड. हेलो, प्लीज चेक द डिलीटेड पोर्शन. आसपिया चेक करो बेटा. डिलीटेड पोर्शन बेटा आपको मैं मार्क करा रहा हूं. चलो मार्क कर लो डिलीटेड पोर्शन कोलाइड्स में.
मार्क करिए ऑन पेज नंबर 168, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। मार्क किया। उसके बाद पेज नंबर 169, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। फिर इसके बाद है 170, नीचे देखो दिया होगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। फिर 171 कोआगुलेशन। फिर उसके बाद नीचे मेथड टू इफेक्ट कोआगुलेशन। These are the deleted portion. Done. Hello. So beta, on basis of size of particles, the colloids जो होता है they are classified beta in three types. One is called as true solution. Second is called as colloidal solution, जिसको हम colloids बोलते हैं. Solution. और थर्ड होता है बेटा सस्पेंशन। अब देखो एक ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है? The solution in which size of particles is very small, that is called a student true solution. It is completely homogeneous. Example student like salt solution. This is a true solution. Suspension, where the size of particle is very large, means size of particle is larger as compared to size of particles in colloidal and true solution. That is called as the suspension. टुकड़ा डाल दो पानी। Colloidal. The solution in which size of particles is इसमें पार्टिकल को बोलते हैं बेटा डिस्पर्जन फेज। रेंज देखो कितना दिया है 2 to 5 नैनोमीटर in diameter. इसका जो रेंज है that is 0.12 नैनोमीटर. That is called as colloidal. अब colloidal solution जो होता है बेटा, it is also
हेट्रोजीनियस। अब सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होता है बेटा, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है ना, अभी बोलो, अभी कुछ प्रॉपर है? हाँ, तो सॉल्यूशन में बेटा जो दो कंपोनेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं solute and solvent. Anyone can you tell me what is the solute and what is the solvent? ओके, जस्ट वेट, मैं सबको अनम्यूट करवाता हूँ। विश्वास काका है, कौन है मैडम? हेलो, हाँ सर, करती हूँ। सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दो ना, वो बच्चे लोग खुद से अनम्यूट करके जिनको रिप्लाई करना होगा रिप्लाई कर सकते हैं ना। क्या? हाँ, यस बोलो, क्या बोल रहे हो? स्नेहल, सर सल्यूट जो होता है वो मीन्स फर्स्ट प्रोडक्ट होता है और दूसरा जो सॉल्वेंट होता है वो उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं। ओके, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है तो व्हाट इज द सॉल्यूट? सर सॉल्यूट ये वाटर होगा, उसके अंदर हम सॉरी सॉल्ट सल्यूट होगा और मीन्स उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। आसिया, एक तो सबका वीडियो ऑफ है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कौन है कौन नहीं है? कैन यू कीप योर वीडियो ऑन? यस सर। प्लीज, जितने लोग लेक्चर रेगुलर अटेंड करते हो, कीप योर वीडियो ऑन, तो एटलीस्ट मैं आइडेंटिफाई करूं कौन कौन है जिसको मैं पूछ पाऊं। प्लीज स्टूडेंट, कीप योर वीडियो ऑन। आई थिंक सब लोग कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को, है ना? ओनली अभी 4 लोगों ने ऑन किया। यस, रीता ने ऑन किया, नाउ आरती। चलो, रीता गुप्ता, बेटा क्या होता है सल्यूट और सॉल्वेंट? सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना, हाँ, सर जो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम क्वांटिटी में रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा। जैसे वेरी सॉल्ट गुड, और जैसे सॉल्ट और करेक्ट, वाटर में सॉल्ट इज मींस सॉल्यूट है और वाटर इज अ सॉल्वेंट। 100% करेक्ट, वेरी गुड रीता। थैंक यू सर। सल्यूट और सॉल्वेंट में बेटा अगर आप बोलोगे कि जो डिसॉल्व करते हो सल्यूट और जिसमें डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट, तो मैं आप लोगों को दे देता हूँ अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल में वाटर डाल सकते हो, वाटर में भी अल्कोहल डाल सकते हो। यस कृतिका, कृतिका कैन यू हियर मी? कृतिका अनम्यूट Yes, करके sir. आना बोल सकती है तुम। हाँ सर, हाँ हाँ।
हाँ यस मेयर, अल्कोहल एंड वाटर लिया तो बेटा सॉल्यूट बना सकते हैं ना। तो सर, सिंपल सा जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट। वेरी गुड। तो जो सॉल्यूट होगा बेटा, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, so which is present in less amount, that is called as solute, and which is present in large amount, that is called as solvent. अब यहाँ पे मुझे क्या बताना था बेटा, कोलाइडियल सॉल्यूशन। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वैसे बेटा इन कोलाइडियल सॉल्यूशन दे हैव आल्सो टू कंपोनेंट, दैट टू कंपोनेंट इज कॉल्ड एज dispersion phase and dispersion medium. dispersion, देखो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 166 पे ऊपर राइट साइड में दिया होगा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज जो नॉर्मल सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट बोलते हो, इन कोलाइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का दूसरा नाम है डिस्पर्जन फेज, और दूसरा है बेटा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, अब कोई पूछे व्हाट इज द डिस्पर्जन फेज, तो क्या बोलोगे, द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट is called as disperse phase, and the component of the colloidal solution which is present relatively in large amount is called as dispersion medium. Understood? Yes, sir. वेट करना पड़ रहा है, कोई तो बोले यस नो, कुछ तो बोल दे। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, और सस्पेंशन, ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया। कहा था पेज नंबर 166 पे जो दिया आपका कोलाइड्स। इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में बेटा एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स। वैसे भी अब पास होने का टेंशन तो आई थिंक सबका खत्म हो गया, प्रमोट किया जाएगा। हाँ स्नेहल, पास हो गई ना? हाँ सर। चल रफ कर दे इसको, लिख लिया? वेट सर, वेट। हाँ। कोई तो बोल रहा है थर्ड वाला क्या है, थर्ड इज द सस्पेंशन। रेत ले ले और पानी ले ले, मिला दे, दैट इज द सस्पेंशन। पार्टिकल्स दिखेंगे तुझे, पत्थर डाल दे बड़ा सा पानी में, दैट इज ऑल्सो सस्पेंशन। अब केमिकल लैंग्वेज में आता है तो स्टार्च डाल दे, पॉलीमर्स कोई भी ले लो, दैट इज सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस, क्योंकि दो फेज दिखेगा। इसमें भी सल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं। ओनली कोलाइडियल में हम सल्यूट की जगह पे वर्ड यूज करेंगे डिस्पर्जन फेज, एंड सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे डिस्पर्जन मीडियम। अंडरस्टूड? रीता करेक्ट बेटा? यस सर। रब करें क्या अभी? Yes, sir. प्रसाद, रोहित प्रसाद, यस सर। टॉपिक समझा बेटा पूरा? यस सर। अब जो वीडियो ऑन नहीं किए, इसका मतलब कहीं तो मॉर्निंग वाला वर्क हो रहा है उनका। भाई कंफर्टेबल जोन में नहीं हो क्या बाकी लोग? और लेक्चर जो रूम में ही बैठ के पढ़ते हैं, कहीं और मत लेके चले जाना भाई लोग। नाश्ता करे सर बैठ के। हाँ नाश्ता करो तो ठीक है, बट मुझे मत दिखाना, नहीं मुझे भी भूख लग जाएगी।
चलो रब कर दें। यस चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स में लिख लो बस ओनली क्या क्या है। फर्स्ट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। सेकेंड क्या है बेटा? ब्लड। थर्ड इज सॉइल। फोर्थ, फॉग, मिस्ट एंड रेन। और डिटेल में करना है तो उसको रीड कर लेना, अंदर समझ में आ जाएगा। अब आपका बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द व्हाट? कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टाइप ऑफ कोलाइड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। टाइप ऑफ कोलाइड्स। फर्स्ट, इसके बाद कौन सा चैप्टर तुम लोग का बाकी रह रहा है अभी? एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 2 बाकी है ना बस? यस सर। यस सर। चलिए सर लास्ट वाला भी बाकी है, कौन सा? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है। वो तो बस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ही है, जो यूज करते हैं मेडिसिन वो सब है, वो हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा, उसका कुछ टेंशन नहीं। चैप्टर भी बाकी है। 9th वाला क्या है भाई? वही एलिमेंट वाला 13, 14 एंड 15। वो हिमांशु सर करवाएंगे, पी ब्लॉक पढ़ाएंगे, या तो 11th में करवाएंगे या तो 12th में करवाएंगे। वो 13 ग्रुप पी ब्लॉक ही है ना, तो 13 14 हाँ 15 सर। 11। हाँ 13 14 15 11th में, बाकी 12th में है, तो सब वो सर एक साथ करवाएंगे आपको। तो चलिए, टाइप ऑफ कोलाइड्स बेटा, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट किसका बेटा? डीपी मतलब क्या? डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्स फेज क्या है भाई? सल्यूट है सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। सल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज। एंड डिस्पर्जन मीडियम, डीएम, सॉल्वेंट। solvent. So on basis of physical states of dp and dm, colloids are classified in 8 types. कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 8 types. 8। तो चलो यहाँ पे टाइप ऑफ कोलाइड्स। टाइप ऑफ कोलाइड्स, फिर इसके बाद इसमें डिस्पर्जन फेज क्या हुआ आपको बताना है। फिर इसके बाद बेटा डिस्पर्जन मीडियम, उसके बाद आपका एग्जाम्पल।
अब टेबल्स, थोड़ा सा टेबल को मैंने आज चेंज किया। आपके बुक में फर्स्ट कॉलम है डिस्पर्जन फेज के लिए, तो मैंने क्या किया, टाइप ऑफ कोलाइड्स पहले ले लिया। सोल्यूशन भी बेटा जो नॉर्मल सोल्यूशन होता है, दे आर 9 टाइप। अब आपको सोल्यूशन बोला जाता है तो अपने को इतना समझ में आता है, यस यार, सॉलिड इन व्हाट, लिक्विड। सोल्यूशन जो होते हैं दे आर टोटल 9 टाइप। सॉलिड का मिक्सचर भी सोल्यूशन होता है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, ऐसे 3 हो गए। फिर आगे गैस इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। तो टोटल फिजिकल स्टेट के बेस पे जो नॉर्मल सोल्यूशन होता है कोलाइड्स नहीं, दे आर 9 टाइप। जैसे सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल आपको मालूम है, मेटल अलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, सॉलिड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल लेना चाहते हो तो सॉल्ट इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर। तो देयर आर बेटा टोटल 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन। बट जो आपका एक कोलाइडियल है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, दे आर टोटल 8 टाइप। जिसके यहाँ से कुछ ज्यादा आवाज आ रहा हो अपने को म्यूट कर सकता है। सूरज, बर्तन धो रहे हो। भाई बर्तन धोने वाली ड्यूटी तेरी लगी है क्या? यार बर्तन की आवाज तेरे को समझ में आ गई तुरंत? सर मैं तो करती हूँ मेरे घर पे। उसके भी घर पे कर दे। अरे इसकी बाप, मम्मी है और वो भी है। अच्छा किसको बुरा लग गया भाई? सूरज को बुरा लग गया क्या? फर्स्ट देखो दिया बेटा, क्या बोलो, बोलते जाओ। फर्स्ट टाइप सॉलिड सॉल्व। सेकंड क्या नाम दिया है? सॉल्व, या इसको हम बोलते हैं बेटा जेल। थर्ड बोलो, एरोसॉल। नेक्स्ट नंबर क्या दिया बेटा? जेल। फिर क्या लिखा है? इमल्सन। फिर क्या लिखा बेटा? एरोसॉल। 7 is solid sol। फिर दिया आपको बेटा फोम। चलिए फर्स्ट में देखिए, डिस्पर्जन फेज क्या लिखा है बेटा? सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड मतलब लेस अमाउंट वाला जो है बेटा, वो सॉल्यूट भी आपका सॉलिड है, उसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड ही है। फिर उसके बाद दिया होगा सॉल्ट्स एंड जेल के लिए, सॉलिड इन लिक्विड। फिर इसके बाद होगा एरोसॉल, दैट इज सॉलिड इन गैस। अब आता है जेल। जेल देखो क्या है बेटा? लिक्विड एब्सोल्यूट है, डिस्पर्जन फेज, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, इमल्सन जैसे मिल्क, आपका मिल्क, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। फिर सॉलिड सॉल्व, गैस इन सॉलिड, फोम, गैस इन लिक्विड। ओनली गैस इन गैस का नहीं बनता है अपने पास सॉल्व। अब यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल देखो, नोट कर लो। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या दिया है? कलर्ड ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्व। पेंट, पेंट देखो सॉलिड पार्टिकल जो रहता है बेटा स्मॉलर रहता है, लिक्विड ज्यादा रहता है, तो पेंट
solutes, gelatin, muddy water. These are the example of salts and gel. Smoke and dust, solid and gas का example. Liquid in solid, butter, liquid in liquid, milk, air cream, liquid in gas, fog, mist, cloud, gas in solid, pumic stone. ये pumic stone मालूम है क्या होता है? pumic stone यूज करते हो घर पे कभी? बता रहा हूँ. देखने में तो पत्थर ही दिखेगा, बट उसमें ना नंबर ऑफ होल्स रहते हैं. ज्यादातर लोग घर पे यूज करते हैं. घर पे और पैर और साफ करने के लिए ना चीज अपना जो है उसको क्लीन करने के लिए उसको यूज करते हैं प्यूमिक स्टोन. बहुत सारे छोटे छोटे होल्स रहते हैं. दिखने में पत्थर है बट दैट इज लाइटर. बहुत हल्का होता है. यस सर। False types. जैसे आपको एक फॉर्म क्लीन करना है तो उसको हम यहाँ से रफ कर सकते हैं. तो पैर या हाथ रफ करके उससे हम क्लीन करते हैं. तो कभी जाओ प्यूमिक स्टोन लेके आओ, बाहर से मिलेगा आपको. क्रैक, बहुत हालत खराब हो जाती है तब हम क्रैक क्रीम लगाते हैं. हालत वोलत थोड़ी अच्छी रहे तो हम प्यूमिक स्टोन से काम चला लेते हैं. सर है मेरे पास। किसके पास है? मेरे पास। गुड. सर मैं दिखाती हूँ। नहीं 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 स्नेहल दिखा मत. अच्छा दिखा दे, चल अच्छा है. कम से कम बाकी मैं लोग भी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ. कौन दिखा रहा था? अदिति। अदिति. हाँ देखो बराबर है. गुड. प्लीज सब लोग देख लो. अदिति बराबर बेटा. स्नेहल बोले कि ये भी कुछ चीजें होती है क्या ऐसे? नहीं दिख रहा है. रुक मैं उसका तू कुछ बोल बेटा, तेरा वीडियो आ जाएगा पूरा. ओके सर ये देखो। हाँ हाँ सर दिखा. दिखा. ठीक है हो गया अदिति. क्लियर. गुड. थैंक। रोहन बोल रहा है कि अरे सर ये तो मेरे बिल्डिंग में बहुत बड़ा बड़ा है. ओके चलिए तो एग्जांपल आप कंप्लीट कर लोगे बेटा. कैन आई रिपीट? यस सर. हाँ फटाफट एग्जांपल कंप्लीट कर लो. चलो अदिति का वीडियो आप प्यूमिक स्टोन का यूज ही कर रही थी क्या? तू लेक्चर में है ना? सर Yes, थोड़ा नीचे sir. करो ना। थोड़ा डाउन में शिफ्ट करो ना कैमरा। डाउन. अभी यस डन. डन। यस 1 minute. चलो कंप्लीट कर लो फटाफट. सर पूरा एग्जाम्पल लिखना है? हाँ लिख लोगे तो बढ़िया ही है ना बेटा. दो दो एग्जाम्पल भी लिखोगे चलेगा. अब तो ये भी नहीं बोल सकता कि एग्जाम में एमसीक्यूज में अगर आएगा. अब क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा आपको समझो. जेई में अगर पूछ लिया, आपको पूछ दिया समझो चीज इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से आपको करेक्ट करना होगा. तो बोलो क्या आंसर होगा? चीज इज आंसर ऑफ विच टाइप ऑफ कोलाइड इज चीज? जेल. चल। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे. जैसे पूछ दिया फोग इज द एग्जाम्पल ऑफ, गैस। एरोसोल. वो डिफिकल्ट वर्ड है क्या? हाँ टाइप करने वाले थे हम लोग.
चलो कंप्लीट कर लो फटाफट। हो गया सर। डन। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए सेकंड क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन बेसिस ऑफ अफिनिटी। तो राइट सेकंड क्लासिफिकेशन on basis of सर कैमरा सर दिख ही नहीं। ओके 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 अब दिख रहा है कुछ? यस तो ऑन बेसिस ऑफ अफिनिटी ऑफ phase what is the affinity बेटा? हेलो उसकी अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी सर, अट्रैक्ट किसकी होने की टेंडेंसी? अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी। वेरी गुड वेरी गुड। अफिनिटी मतलब होता है लव, अट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे देखो जो सॉल्वेंट, एक दो टाइप के सॉल्यूट होते हैं, एक जो सॉल्वेंट को हेट करे, दूसरा लव करे। मींस जो सॉल्वेंट से अट्रैक्ट हो। तो ऑन बेसिस ऑफ बेटा अफिनिटी बिटवीन dispersed phase and dispersion medium, colloids are classified in two types. First is lyophobic, एक होता है लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड्स, और दूसरा होता है बेटा लायोफोबिक कोलाइड्स। कोलाइड्स है समटाइम्स आपको सॉल्व भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। अब लायोफिलिक, फिलिक मतलब जो लव अट्रैक्ट करता हो, एंड मतलब जो हेट करता हो, रिमूव करता हो। तो नाउ डेफिनेशन लायोफिलिक का क्या है? द कोलाइड्स इन विच स्ट्रॉन्ग अफिनिटी बिटवीन dispersion phase and dispersion medium known as lyophilic colloids. तो लिख लो lyophilic का definition. The colloids in which strong affinity between dispersed phase and dispersion medium known as lyophilic salt. Lyophilic salt. फिर से the colloids in which strong affinity between
disperse phase and dispersion medium known as lyophilic salts. Done. चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल गम सॉल्यूशन। गम सॉल्यूशन जानते हैं क्या होता है? Yes. एनीवन? Yes. कौन यस बोल रहा है? कृतिका? अदिति वापस से। अदिति है कहाँ पे? पता नहीं, वीडियो ऑफ कर ले रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसका। कहाँ से स्लो? हाँ अदिति बोल। Yes. sir. लिखिए 11th Z1 आदित्य @ क्या क्या V8। बाप रे बहुत बड़ा नाम है। हाँ बोल अदिति। Sir, ठीक है। अच्छा गम जानती सॉल्यूशन हूँ, नहीं sir. जानते? Sir, हम गम सॉल्यूशन नहीं जानते हो? रीता? खुशी सॉल्यूशन जानती है? खुशी सॉल्यूशन? सौर्या? गम सॉल्यूशन नहीं जानते बेटा? अच्छा गोद जानते हो? गोद? अरे गम जानते हो? गम हाँ सर। चिपकाने के लिए यूज हाँ। करते हो? हाँ सर। अरे बाप रे, मतलब एकदम आ जाओ अपने लैंग्वेज में तो समझेगा। गोद। आटा ले ले, आटा का भी को गोद पानी में बनता लाके है। बनाते हैं, जानती हूँ सर। करिश्मा बोल रही है, ऐसा होता है क्या? बनाए आज घर पे आटे का गोद। तो गरम करना पड़ेगा बेटा थोड़ा। इट एक्ट लाइक गम की तरह ही काम करता है सर सर। वो आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज यस यस। तो गम सॉल्यूशन जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है सॉल्वेंट के साथ पूरा अट्रैक्ट किया रहता है। तो दैट इज द वर्ड लायोफिलिक। के बाद दूसरा है लायोफोबिक सॉल्ट। तो लिखो लायोफोबिक सॉल्ट। सेकंड लायोफोबिक कोलाइड्स या लायोफिलिक सॉल्ट। तो लिखो द कोलाइड्स in which no affinity between, no means less affinity भी बोल सकते हो, no affinity between disperse phase and dispersion medium no affinity between disperse phase and dispersion medium known as lyophobic salt. Example ferric hydroxide solution. फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्मूला है FeOH थ्राइस। सॉल्यूशन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करो। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर HOH तो होता है क्या बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा और प्लस बाय प्रोडक्ट 3HCl। ये जो सॉल्यूशन बना है इस बोलते हैं बेटा एक ट्रांसपेरेंट, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन होता है ना, क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। तो जो क्लियर सॉल्यूशन है दैट इज कंसीडर्ड एज अ लायोफोबिक सॉल्ट।
वो सॉल्वेंट के साथ उतना अट्रैक्ट नहीं होता है। क्लियर? चलिए, तो लायोफिलिक का भी कोई पूछा एग्जाम्पल क्या है? लायोफिलिक का एग्जाम्पल लिखवाया मैंने बेटा, गम सॉल्यूशन। और लायोफोबिक में आपने क्या लिख लिया? फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। आपको बुक में लायोफोबिक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में देखो, पेज नंबर 167 राइट साइड में। लायोफोबिक के नीचे देखो, 5th या 6th लाइन में एग्जाम्पल दिया है। फटाफट, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। तो फर्स्ट लायोफिलिक है एंड सेकंड लायोफोबिक। फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? फॉर्म्ड इजिली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। लायोफोबिक क्या है? फॉर्म ओनली बाय द व्हाट? स्पेशल मेथड। सेकेंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीनिंग देखो यहाँ पे क्या हुआ। जब इसको लायोफिलिक को बेटा इवापोरेट करोगे, तो इवापोरेट होने के बाद जो भी डिस्पर्स फेज इवापोरेट हुआ, उसको वापस अगर मिक्स किया तो वी कैन गेट द व्हाट? अगेन सोल्यूशन। बट यहाँ पे इट इज इरिवर्सिबल। अगर डिस्पर्स फेज इवापोरेट हो गया, उसके बाद आप मिक्स करोगे तो दे कैन नॉट बी मिक्सड इजिली। थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल आर नॉट इजिली विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। यहाँ पे द पार्टिकल आर इजिली डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। दे आर सेल्फ स्टेबलाइजेशन। Addition of large amount of electrolytes cause for precipitation. आपने अगर बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला तब जाके प्रेसिपिटेट होगा। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉजेस फॉर द पीपीटी। विस्कोसिटी, हायर विस्कोसिटी और लोअर विस्कोसिटी का कंसेप्ट क्या है? हाउ कैन वी नो एनी सोल्यूशन हैव ए हायर विस्कोसिटी एंड लोअर विस्कोसिटी? जैसे वाटर और हनी में क्या डिफरेंट है? वाटर जो है दे कैन फ्लोट इजिली, बट हनी इतना इजिली फ्लोट नहीं करेगा जितना सर वो वाटर। डार्क होता है थोड़ा वाटर के कंपैरिजन में। ठीक होता है, हाँ डार्क ठीक। नहीं बोलते उसको, थिक बोलते। हाँ तो जो ज्यादा इजिली मूव नहीं कर पाएगा उसका विस्कोसिटी हायर होता है। तो थिक वाले का विस्कोसिटी हायर, और जो क्लियर सोल्यूशन होता है उसका विस्कोसिटी लोअर। तो गम सोल्यूशन का विस्कोसिटी क्या होगा बोलो? हायर होगा। हायर होगा सर। और जो आपका solvent है उसका क्या होगा? लोअर होगा। तो दिया है लोअर होगा। viscosity of dispersed phase much higher than that of dispersion medium. यहाँ पे viscosity of dispersed phase is nearly same. Surface tension of dispersed phase is lower than medium. यहाँ पे surface tension of dispersed phase is nearly same. ये तो हो गया बेटा difference on basis of affinity between dispersed phase and dispersion medium. चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। देखो आपको टेक्स्ट बुक में 3 टाइप होंगे। फर्स्ट मल्टी मॉलिक्यूलर, कोलाइड्स,
फिर होगा मैक्रोमोलिकुलर, और थर्ड होगा एसोसिएटेड कोलाइड्स। चलो ये तीनों आप समझ लो बुक में ही। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स मीन्स लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट, द एटम आर स्मॉल, और साइज का रेंज कितना दिया है बेटा, 10⁻³ मीटर। साइज के बेस पे क्लासिफाई किया सॉल्ट एंड सल्फर मॉलिक्यूल, इतना सफिशिएंट है आपका। सेकेंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रो मतलब क्या बेटा, पॉलीमर, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए होंगे। तो मतलब ऑल पॉलीमर जो होंगे, इट इज द एग्जांपल ऑफ माइक्रोपॉलीमर्स। जैसे एग्जांपल देखो दिया होगा इसमें आपको, स्टार्च। स्टार्च इज व्हाट, इट इज द पॉलीमर ऑफ, इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज। दूसरा एग्जांपल लिया होगा बेटा, सेलुलोज। ये भी पॉलीमर किसका है बेटा, ग्लूकोज का ही है। ग्लूकोज का जब आप आगे 12th में पढ़ोगे तो इसके एक अल्फा एनोमर होता है और इसमें एक बीटा एनोमर होता है। तो बीटा एनोमर वाले का सेलुलोज होता है और अल्फा वाले का होता है स्टार्च। एक तीसरा एग्जांपल आपको दिया होगा, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड। इज आल्सो अमाइनो पॉलीमर, एसिड। इट इज अल्फा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, RCH NH2COH, दिस इज द अल्फा पोजीशन। इसका पॉलीमर प्रोटीन, ग्लूकोज का सेलुलोज, ग्लूकोज का स्टार्च। तो दीज आर द बेटा पॉलीमर्स। तो देखो दिया भी आपको, मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड पेयर आर सफिशिएंटली लार्ज इन साइज to the colloidal dimension. Example like starch, cellulose, protein, polythene. दूसरा लिया बेटा पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है, इट इज द पॉलीमर ऑफ इथीन। इथीन एन टाइम इथीन लोगे तो आपको पॉलीथीन बनेगा। दूसरा एग्जांपल है बेटा नाइलॉन। नाइलॉन इज द पॉलीमर ऑफ एडिपिक एसिड and hexamethylene diamine. So these are the example of student like polymer. थर्ड आपको दिया है एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब एसोसिएटेड कोलाइड्स में देखो क्या है, इसमें जो एग्जांपल लिया बेटा, सोप एंड डिटर्जेंट। अब देखो सोप क्या आता है, सोप का फॉर्मूला बोलो, करिश्मा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोप? जाके अंदर से साबुन उबुन लेके मत आ जाना, उस पे फॉर्मूला नहीं लिखा है। एनीवन, सोप का फॉर्मूला? अच्छा सोप बनता कैसे है? जो भी बेटा फैटी एसिड, फैटी एसिड में क्या डालते हैं, बेस NaOH। तो क्या मिलता है आपको बेटा, सोप। सोप क्या है आपका, सॉल्ट, और बाय प्रोडक्ट बनता है वाटर। सी फैटी एसिड मतलब द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग कार्बन मोर देन 12 कार्बन।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी NaOH के साथ रिएक्शन होगा, एसिड का H जाएगा, बेस का OH, तो सॉल्ट बनता है बेटा RC डबल बॉन्ड ONA प्लस वाटर, ये हो गया बेटा। तो सोप का जो फॉर्मूला है RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इज कॉल्ड एज सोप। There are two types. अब आप बोलोगे यस, एक नहाने वाला एक धोने वाला, बराबर ना, कपड़े साफ करने वाला। तो सोप जो होता है दो टाइप, एक हार्ड एक सॉफ्ट। सेम वही है जो आप यूज कर रहे हो नहाने के लिए, दैट इज सॉफ्ट। जो आप कपड़े के लिए यूज कर रहे हो दैट इज हार्ड। तो सोडियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, दूसरा होता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब बोलोगे सॉफ्ट में कौन होता है? जो बाथिंग सोप, जो नहाने के लिए यूज कर रहे हो, शेविंग क्रीम, ये सब जो आपका सोप यूज, शैम्पू, ये सब सॉफ्ट में आते हैं। हार्ड में आता है जैसे आप वॉशरूम क्लीन करने के लिए भी जो सोप यूज करते हो, दैट इज द हार्ड सोप में आएगा। तो सोप होता है क्या बेटा? अब यहाँ पे हम कोलाइड्स में जाते हैं। सोप, आगे सोप का हम पूरा डिटेल में करने वाले, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, वो सब 12th में। तो अभी तक इतना जाना। सोप का जो फॉर्मूला है बेटा दैट इज RC डबल बॉन्ड ONA। तो अब इसमें होता है क्या बेटा? जो सोप होता है इसमें दो एंड बोला जाता है। किसमें दो एंड होता है? एक हेड और एक टेल। R मतलब हाइड्रोकार्बन का चेन, कम से कम मिनिमम 12 कार्बन तो होने ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। C डबल बॉन्ड ONA। अब बोल रहा है बेटा कि सोप में जो होता है देयर आर टू एंड। एक को नाम दिया हेड और एक को नाम दिया टेल। तो जो हेड होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो एंड है उसको बोल रहा है हेड, और जो कार्बन का चेन है हाइड्रोकार्बन, उसको बोल रहा है टेल। ये जो होता है बेटा वाटर सॉल्युबल, और ये जो होता है इट इज हाइड्रोकार्बन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है। इसके लिए बुक में बेटा आपको देखो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कुछ लाइक दिस वन। अब इसमें देखो क्या दे रहा है, ये जो अपर पार्ट है दिस इज द हेड। डिसॉल्व जो हो जाता है, इसके लिए उसका नाम देखो, उसके ऊपर लिखा है हाइड्रोफिलिक हेड। अब लायोफिलिक को ये हम हाइड्रोफिलिक कैसे बोलते हैं? जब भी वाटर सॉल्वेंट रहेगा तो लायोफिलिक को हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और लायोफोबिक का नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक। ये समझा आपको मैंने क्या बोला? रीता Yes, sir. Yes, sir. समझा बेटा? शिखा, प्रीति, Yes, sir. रीता, समझा. Yes, sir. अंडरस्टूड कि जब भी वाटर यूज करते हैं तो लायोफिलिक का नाम हाइड्रोफिलिक और लायोफोबिक का नाम हाइड्रोफोबिक। इसके लिए बेटा इस एंड को बोल रहे हैं, देखो हाइड्रोफिलिक एंड। ये जो इसको का क्या नाम दिया है? हाइड्रोफोबिक। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये भी अपना पार्ट बेटा कंप्लीट कर लिया, तो इसको आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रिपरेशन डिलीटेड है। अब मैक्सिमम डिलीटेड पार्ट पे आप आगे जा रहे हो। देखो नाउ
प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स डिलीटेड, तो पेज नंबर 168 का काम खत्म। मतलब इसमें 3 था, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और पेप्टाइजेशन। डिलीटेड सर प्यूरिफिकेशन, डिलीटेड है ना वो भी? हाँ प्यूरिफिकेशन इज आल्सो डिलीटेड। अब हम आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल, फर्स्ट जनरल प्रॉपर्टीज। अगले जनरल प्रॉपर्टी तो सिंपल होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस हो, सब बताएगा, तो टेक्स्ट बुक का पॉइंट ही नोट कर लो। फर्स्ट क्या दिया बेटा टेक्स्ट बुक में, देखो कोलाइडियल सिस्टम इज हेट्रोजीनियस, दे हैव ए 2 फेज, एक डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ये ऑलरेडी जब भी मैंने क्लासिफाई किया था तभी बता दिया था। डन फर्स्ट पॉइंट। हाँ ना कुछ मुंह से निकलेगा। Yes, sir. हाँ Yes, सेकेंड sir. सेकेंड पॉइंट, dispersed phase particle pass slowly through the parchment paper or animal membrane. Animal membrane और parchment paper क्या है? This is the cell membrane. You know osmosis process होने के लिए क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं इसमें, जिससे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, जो कोलाइडियल पार्टिकल है दे पास स्लोली थ्रू द व्हाट, एनिमल मेम्ब्रेन या तो आपका पर्चमेंट पेपर। बट आगे क्या बोल रहा है बेटा, रेडिली पास थ्रू द व्हाट, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। वो जो लैब में फिल्टर पेपर नॉर्मली यूज करते हो आप, उसमें रेडिली मतलब इजीली पास हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स यूजुअली आर नॉट डिटेक्टेड बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये तो हो गया बेटा जनरल प्रॉपर्टीज। तो नोटबुक अगर बनाए हो तो नोटबुक में लिखते जाओगे आप जनरल प्रॉपर्टीज। सेकेंड वन, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बोलिए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको पढ़ना है बेटा टिंडॉल इफेक्ट। चलिए पहले टिंडॉल इफेक्ट का डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। द फेनोमेनन ऑफ, आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 169। द फेनोमेनन ऑफ scattering of light, scattering of light by colloidal particles and making path of light, making path of light visible through the dispersion, is referred as Tyndall effect. चलो टिंडल इफेक्ट आपने कभी ऑब्जर्व किया है अपने डेली लाइफ में? अब तक भी जो आप 17, 18, 25, 30, 35, 40 साल के आप हो गए होंगे। स्नेहल Yes, sir. 35, 40 इयर्स? 50 होने वाले सर। अच्छा ओके, तो आपने कभी अपने लाइफ में बेटा टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व किया? कृतिका, आदिति,
रोहम, एनीवन? सर होता क्या है वो तो बताओ ना थोड़ा। हाँ, मैं 150 साल का हो गया। नहीं, ये होता क्या है? चलो मैं टिंडल इफेक्ट का बता रहा हूँ। अभी तो डेफिनेशन बड़ा बड़ा डेफिनेशन था ना, उसको मैं अपने वे में समझाता हूँ आपको। आप समझो कैसे, अभी तो कभी कभी तो ऐसा हुआ ही होगा आपके साथ। समझो आप डार्क रूम में बैठे हुए हो, रूम अंधेरा पूरा, लाइट वेट अंदर कुछ नहीं है। सपोज करो छत के ऊपर कोई होल से छोटा होल, और उससे सनबीम, जो सूरज की जो किरण है आपकी सनबीम, वो अगर रूम में आ रही है, वो आपको दिखता है क्या? हाँ सर, यस सर। अगर वो दिखेगा आपको तो पूरा रूम लाइट नहीं हो जाता है, पर्टिकुलर वही स्पेस जो वहां से बीम आ रही है वही स्पेस आपको दिखता होगा। यस सर। गेटिंग? यस सर। यस सर। उसमें आप देखो पार्टिकल भी काउंट कर दिखता होगा आपको, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, वो भी Yes, आपको ऐसे छोटे छोटे दिखते होंगे। हाँ सर। यस सर। वो डस्ट पार्टिकल क्यों दिखता है? क्योंकि जो बीम आप लाइट आ रही है, दे विल बी स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब फैल जाना। तो डेफिनेशन वही है, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट जो होती है स्कैटर्ड हो जाती है, फैलती है। ड्यू टू व्हाट? कोलाइड पार्टिकल। यहाँ पे कोलाइड पार्टिकल क्या है? डस्ट। वो जो धूल के कण है, उस डस्ट पार्टिकल के कारण जो लाइट होता है, जो पाथ होता है, पाथ मतलब रास्ता, पाथ जो होता है इट बिकम विजिबल। विजिबल मतलब दिखने लगता है। दैट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। अंडरस्टूड? यस यस सर। सर। हेलो? यस सर। चलो दूसरा एग्जांपल, चलो सेकेंड एग्जांपल और लेता हूं। मूवी देखने तो गए होगे कभी? यस सर। कौन कौन बिना बताया गया है मूवी देखने घर से? ओके। तो जब भी आप मूवी देख रहे होगे बेटा, जो पर्दे पे लाइट आती है वो कहाँ से आती है भाई? प्रोजेक्टर पीछे लगा। हेलो? मेरा सबको? हाँ, पीछे बीम है, वहां से लाइट आती है, तो आपको दिखता होगा वो बीच में। वहां पे भी डस्ट पार्टिकल के कारण बेटा जो होता है, लाइट जो होता है इट बिकम स्कैटर्ड and this path become visible. That is called as what? Colloidal solution. Understood? यस Hello? सर। यस सर। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल एक और। अभी हेडलाइट, रोड पे आप जब चल रहे हो, समझो कार से या बाइक से जा रहे हो, जो हेडलाइट अगर जल रही है तो वहां पे भी लाइट क्या आ रहा है बेटा? स्कैटर्ड हो रहा है ड्यू टू द व्हाट? डस्ट पार्टिकल। दैट्स वाई जो पाथ होता है बिकम विजिबल। लाइट आपको समझो बेटा बल्ब जल रहा है, बट आपको पूरा दिखता कैसे है? ड्यू टू द व्हाट? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। स्कैटर्ड क्यों हो रहा है? ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। अंडरस्टूड? यस सर। अब अगर आपको बेटा घर पे टिंडल इफेक्ट यूज करना है, आप ट्रांसपेरेंट, आप वो लेजर लाइट आता है ना, एक छोटी सी लेजर लाइट। लेजर लाइट सुना है? यस सर। आप प्लास्टिक के बोतल में पानी लो, पानी भरो, पूरा वाटर भरो, और लेजर लाइट लगाओ बॉटल के ऊपर, तो देखोगे लेजर लाइट जो होगा बेटा वो आपको अंदर आपको क्लियर नहीं दिखेगा। बट अगर वो इसी में आप उसको कोलाइडियल सोल्यूशन बना दो बॉटल में, आप कुछ भी ले लो, कोई भी सोल्यूशन जो कोलाइडियल का बना रहे हो, और उसमें देखोगे थोड़ा डस्ट डाल दो, तो उसमें देखोगे बेटा जो लेजर आप लाइट दिखा रहे हो, तो लाइट जो पाथ होगा इट बिकम विजिबल। आपके टेक्स्ट बुक में देखो बेटा डायग्राम शो किया है। पहला ट्रू सोल्यूशन है जिसमें पाथ इज नॉट विजिबल,
बट दूसरा बेटा है क्या, कोलाइडियल है, जिसमें पाथ जो देखो व्हाइट कलर दिखा दिया है, पाथ बिकम विजिबल। अब जो एग्जांपल मैंने आपको दिया बेटा, वो एग्जांपल आपके टेक्स्ट नहीं है। फॉर द वर्ड टिंडल इफेक्ट। तो डेफिनेशन पार्ट अपना डन हो गया। इंपॉर्टेंट देखो क्या दिया है, इट इज यूजफुल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलाइडियल सिस्टम एंड आल्सो साइज। आप पार्टिकल काउंट कर सकते हो, दिखता है आपको, एंड आल्सो यू कैन डिटरमाइन द साइज। तीसरा बेटा, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडियल सॉल्यूशन। कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन ट्रू सॉल्यूशन है और कौन कोलाइडियल सॉल्यूशन है? तो ट्रू सॉल्यूशन में बेटा जो लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी, बट कोलाइडियल में लाइट क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। होप यू ऑल अंडरस्टूड। हेलो। यस सर। इसके बाद बेटा हम कलर से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो थोड़ा बहुत टॉपिक बच गया है, एंड ग्रुप 1-2 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सर। बाय। ओके सर, बाय, थैंक यू। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर।